A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is government budget and the economy. So in this chapter we have already discussed about the introduction of that part. Next we have started the meaning of the budget and the features of the budget. After that we have started the topic that is objectives of the budget, so in which we have already discussed there are 5 objectives of the budget. First one is it reduces the inequalities in the income and the wealth. Second is reallocation of the resources. Third one is economic stability. Fourth one is direct participation and the economic growth by managing the public sector enterprises, and the last one is that is growth of the economy. After that we have started a new topic that is structure and the components of the budget. So in this we have discussed there are 2 components of the budget, that is budget receipt and the budget expenditure. So then budget receipt is further divided into 2, that is revenue receipt and the capital receipt. Budget expenditure is further divided into 3, that is revenue expenditure, plan expenditure. Second one is developmental and the non-developmental expenditure, and the third one is plan and non-plan expenditure. So in the last class we have started the budget receipt. So we have discussed about the budget is simply the income from all the sources of the government, and we have started revenue receipt. So revenue receipt is simply which does not cause any change in the asset and liability status of the government. So it is divided, there are different sources for the government revenue. So it is divided into 2, that is tax revenue receipt and the non-tax revenue receipt. So tax revenue receipt are those receipts in which government on the revenue from the tax. But in the case of non-tax receipt, there are different kind of revenue other than the taxes, like fines, penalties, SG, etc. We have started the topic that is tax receipt. So tax is simply a compulsory payment which is made to the government. Okay, so when the government has a lot of the taxes or the lot of the money in the form of revenue, they spend for the public welfare. So there is no proportionate relation between the amount of tax government has taken and the social benefit the government has provided. So we have also discussed about the types of the taxes. There are 2 types of the tax, direct tax and the indirect tax. So till here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to start with the non-tax receipt. So let's get started. So the next topic that we are going to start is that is non-tax receipt. Non-tax receipt. Non-tax receipt का सिंपली मीनिंग होता है कि इट इज़ दी ऑल्सो दी वन ऑफ दी सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ये भी गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स होता है रेवेन्यू का, ठीक है. बट दिस सोर्स इज बियॉन्ड दी टैक्स. ये टैक्स के बियॉन्ड की बात करते हैं. हम लोग जो भी इनकम यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करेंगे वो टैक्स से नहीं करेंगे और डिफरेंट सोर्सेज से करेंगे. तो इसमें क्या क्या सोर्स आ जाते हैं? फर्स्ट वन इज दैट इज फीस. सेकेंड है लाइसेंस एंड परमिट फी. Third one is that is special assessment. Yes. Special assessment. Fourth one is that is SG. Fifth one is fine and penalties. Fines and penalties. Sixth one is gift and grant. Gift and grants. Seventh one is income from public enterprises. Income from
public enterprises. Next one is interest on loan. Interest on loan. And the last one is forfeiture of the bonds. Forfeiture of bonds. So ये सारे क्या हैं? Different सोर्स हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, एक्सेप्ट दी टैक्स रिसिप्ट. टैक्स रिसिप्ट के अलावा गवर्नमेंट के ये सारे सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू को अर्न करती है. जिसमें सबसे पहला फीस हो गया, लाइसेंस एंड द परमिट फी, स्पेशल असेसमेंट, एस्टीट, फाइन्स एंड पेनाल्टीज, गिफ्ट एंड ग्रांट, इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेज, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड्स. सबसे पहला इसमें फीस. So one of the main source of the non-tax revenue of the government is fees charged by the government. ठीक है, एक जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट का एक सोर्स है इनकम का, वो क्या है, फीस है. सो इट इज़ इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. ये इम्पोज कौन करता है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है, टू कवर द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट. ये बेसिकली गवर्नमेंट इम्पोज करती है इसलिए कि जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके रिटर्न में उसको वो कुछ अर्न करे. So a fee is a payment to the government for the services rendered to the public. फी क्या है, एक पेमेंट है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है उन सारी सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की है. जैसे हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी चीज़ का, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हो गया, या लैंड लेने जा रहे हैं तो लैंड की फ़ीस हो जाती है. बर्थ के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं ना हम लोग, बर्थ रजिस्ट्रेशन या डेथ रजिस्ट्रेशन. तो जो भी हम लोग पे करते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, फीस हो जाते हैं. कोर्ट की फ़ीस, जो भी कोर्ट में जा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग पे करते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, फीस हो जाते हैं. मेन फीचर ऑफ द फीस आर, जो मेन फीचर है फीस का वो क्या है, फीस इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी लेने जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग उसका पेमेंट ना करें. इट इज़ दी कंपल्सरी पेमेंट जो हर एक इंडिविजुअल को करना है. फीस प्रोवाइड स्पेसिफिक बेनिफिट टू दी पेयर. जो भी पेयर है, जो पे कर रहा है, वो उसको क्या करती है, एक स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करती है. फीस इज़ नॉट अ पेमेंट फॉर द कमर्शियल सर्विस. कोई भी फीस इसके लिए पेमेंट नहीं होता है कि कमर्शियल सर्विस. कमर्शियल सर्विस मतलब कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग कोई भी फीस को गवर्नमेंट नहीं लेती है. वो एक काइंड ऑफ उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे फीस को इम्पोज करती है. तो ये भी एक, ये क्या हो गया, इट इज़ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू और द रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज फीस. सेकेंड वन इज लाइसेंस एंड द परमिट फीस. आपको पता है कि हम लोग को कोई भी लाइसेंस चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी को कोई पिस्टल, ये सारी चीज़ों के लिए भी लाइसेंस लगता है. या कुछ भी परमिट करना है, यहाँ से गुड्स को ट्रांजैक्शन किसी और स्टेट में करना है, या कोई भी अगर घर बनवाना है 3 स्टोरीज़ के बाद या 2 स्टोरी के बाद, तो हमें क्या करना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से. तो उस परमिट लेने पे जो भी हम एक्स्ट्रा इनकम पे करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लाइसेंस को. जो भी हमें लाइसेंस लेना है उसके लिए, और परमिट फी. लाइसेंस के लिए जो भी आपको याद होगा इंडियन इकॉनमी में हम लोग पढ़ रहे थे कि सारे जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्हें अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, या नए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता था ना. तो ये क्या है, लाइसेंस एंड द परमिट फी. सो इट इज़ पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है टू सीक परमिशन फॉर दिस समथिंग. किसके लिए, किसी भी काम करने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा. इसके लिए क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है. जैसे लाइसेंस फी पेड टू दी गेट लाइसेंस टू दी ड्राइव व्हीकल. व्हीकल को ड्राइव करने के लिए भी हमें क्या लेना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस. फॉर द परमिशन ऑफ द कीपिंग अ गन, अगर हमें गन को भी रखना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट है दैट इज स्पेशल असेसमेंट. So it is that payment which is made by the owner of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government. इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक लैंड वैकेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्रॉपर रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, गवर्नमेंट ने प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, वेयर हाउसिंग दे दिया, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, कम्युनिकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे दी. तो यहाँ पे जो भी अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप है, तो उसकी भी क्या है, वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी.
क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब जब लोगों को लगेगा कि यहाँ पे ये ऑलरेडी ये जो एरिया है, ये जो सेटअप हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, तो उनकी वैल्यू जो अप्रिशिएट हो रही है ओनली बिकॉज कि गवर्नमेंट ने वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की है, उस पर जो भी पेमेंट वो करते हैं उसी को बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है, तो इन रिटर्न वो भी तो कुछ सोचेगी ना कि हमें भी तो कुछ कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न हो। उस केस में क्या है, जो भी हमें मिलता है उसको गवर्नमेंट को मिलता है, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इट इज़ दैट पेमेंट, ये वो पेमेंट है विच इज़ मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ के ओनर मेड करते हैं whose वैल्यू हैज़ अप्रिशिएटेड, जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट और इंक्रीज की है ड्यू टू दी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ दी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की, उसकी वजह से उनकी वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है। इन रिटर्न जो भी पेमेंट किया जा रहा है उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द IT सेक्टर, जब डेवलपमेंट हुआ IT सेक्टर का, सो वैल्यू ऑफ द नेबरिंग प्रॉपर्टी और इट्स रेंटल वैल्यू अप्रिशिएट, और उसके बगल में जो भी डिफरेंट रेंटल या हम लोग कह सकते हैं कोई भी अगल बगल सारी वो थी, इंडस्ट्रीज़ थी या जो भी सारी फैसिलिटीज़ थी, उनकी वजह से उनकी वैल्यू क्या हुई, अप्रिशिएट हुई। देन अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब जो भी गवर्नमेंट ने सारी उस एरिया में जो भी डेवलपमेंट किया, तो गवर्नमेंट को वो सारी चीज़ें रिटर्न में चाहिए, तो गवर्नमेंट ये सारी रिटर्न में कैसे लेगा, उनसे लेगा जो स्पेशल असेसमेंट के थ्रू, मतलब वो उन पर क्या करेगा, कुछ चार्जेस लगाएगा जिसके थ्रू उनकी गवर्नमेंट की भी क्या होगी, इनकम होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस एरिया में क्या किया है, एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज एस्टीट। ये एकदम सिंपल सा, एस्टीट का मतलब यही है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल लेती हूँ अपने लिए ही कि मेरा कोई भी नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा असेट है, बट मेरा आगे कोई भी नहीं है, ना कोई मेरे पीछे, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो किसको चली जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी। दिस इज सिंपली एस्टीट। ठीक है, यही कह रहा है कि एस्टीट रिफर्स टू द डार्ज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, वो इनकम गवर्नमेंट की विच एक्रूज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी से एक्रू होती है, विच डज नॉट हैव अ लीगल हायर, जिसका कोई लीगल हायर है ही नहीं। मेरा कोई भी लीगल हायर नहीं है कि मैं जिसको अपनी प्रॉपर्टी दे सकूं, मेरा कोई भी नहीं है। उस केस में क्या करती है, जो भी इनकम होती है या जो भी असेट होता है वो गवर्नमेंट का हो जाता है। सो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट। अब जो भी इनकम होगी उन प्रॉपर्टी से वो किससे बिलोंग करेगी, गवर्नमेंट को। तो यही होता है एस्टीट। ठीक है, कि जिसका कोई भी लीगल हायर नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी किसको चली जाती है, गवर्नमेंट को चली जाती है। नेक्स्ट वन इज फाइन्स एंड पेनाल्टीज। फाइन एंड पेनाल्टीज आपको पता है कि आप लोग कभी कभी रैश ड्राइविंग करें या कभी कुछ गलती कर देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फाइन्स देना पड़ता है, पेनाल्टी देना पड़ता है। तो ये सारा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट का क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। ठीक है, तो फाइन्स एंड पेनाल्टी सिंपली क्या हो गया, फाइन एंड पेनाल्टी मीन्स फाइन एंड पेनाल्टीज आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय दोज हु ब्रेक लॉज। ठीक है, जो भी लॉज बने हुए हैं उन लॉ को जो भी ब्रेक करता है वो उसके रिटर्न में जो भी पेमेंट करता है, जिसमें आप लोग देखते हो ना कि चालान लग जाता है, चालान हो जाता है, कभी गाड़ी चल गई या हम लोग ने कुछ भी एरिया को क्रॉस कर दिया, क्रॉसिंग थी और हम लोग ने क्रॉस कर दिया, तो इन केस में क्या हो जाता है, चालान हो जाता है गाड़ी का। तो ये सारे क्या है, फाइन्स हमें पे करना पड़ता है ना, वही सारे क्या होते हैं, फाइन्स एंड पेनाल्टीज़, क्योंकि हम लोग ने रूल्स को क्या किया है, जो भी लॉज बने थे उनको ब्रेक किया है। अगर हमें कोई भी फाइन और पेनाल्टी नहीं लगेगी तो हम लोग फिर वही नेक्स्ट गलती करेंगे। इसके लिए क्या है कि कुछ फाइन एंड पेनाल्टी लग जाती है। जैसे आप लोग फीस क्या लेट पे करते हो तो बोला जाता है कि आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा 100 रुपीज़ 200 रुपीज़। ये क्यों किया जाता है कि आगे आप लोग वो गलती ना करो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इट्स एक्चुअल एम इज़ टू फोर्स द पीपल टू लॉ अबाइडिंग। सेम थिंग दैट आई वाज सेइंग कि ये एक्चुअल एम इसका यही है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं उसको क्या किया जाए, अबाइड किया जाए, लोग उसको क्या करें, फॉलो करें। सो इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द आर्बिट्रेरी मैनर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ऑफेंस। ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी मैनर पे होता है, मतलब मनमाने जैसे भी करना है। ये क्या है कि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा उसने ऑफेंस किया है, कितनी बड़ी गलती उसने की है, वो उस हिसाब से क्या करेगा, पेमेंट करेगा। सो दिस इज फाइन एंड पेनाल्टी। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट एंड ग्रांट्स।
गवर्नमेंट रिसीव गिफ्ट एंड ग्रांट्स फ्रॉम द विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उसको डिफरेंट टाइप्स के गिफ्ट मिलते हैं। और ग्रांट मतलब एक इनकम होता है, फंड होता है जो इन रिटर्न हमें कुछ उसके देना नहीं होता है। कोई भी सिंगल हम लोग जिसको कह सकते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट होता है। तो ये गिफ्ट एंड ग्रांट विद इन द कंट्री भी मिलता है और आउटसाइड द कंट्री भी मिलता है। सो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब ये नहीं है कि हर कोई भी गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करेगी कि हर महीने कोई इसको गिफ्ट और ग्रांट देगा, या एवरी ईयर कोई भी उसको इंडिविजुअल या कंट्री उसको क्या करेगी, कुछ भी गिफ्ट एंड ग्रांट देगी। ये परमानेंट सोर्स नहीं होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, ऑफ द रेवेन्यू। सो दिस इज जनरली रिसीव ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटीज़। ये बेसिकली कब रिसीव होता है, जब भी कंट्री में नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, या वॉल्केनो या कुछ भी आ जाता है, उस केस में अर्थक्वेक। सो मे बी ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन या वॉर के सिचुएशन पे भी जब होता है, तो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ मिला तो मे बी गवर्नमेंट का 90 करोड़ ही एक्सपेंडिचर हुआ या 99 करोड़ ही एक्सपेंडिचर हुआ, तो 1 करोड़ जो बचा वो गवर्नमेंट का क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट ही हो गया। और हो सकता है कि अगर उसको 100 करोड़ मिला हो तो उसका जो एक्सपेंडिचर हो वो 150 करोड़ हो गया। तो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, बट ये क्या होता है, एक सोर्स होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। नेक्स्ट वन इज दैट इज इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेज। जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, PSUs जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो जो भी उनकी रेवेन्यू हो रहा है, जो भी उनका गवर्नमेंट इनकम हो रहा है, वो भी किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। सो प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेज का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आपको पता है इंडियन रेल हो गया, भेल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और फिर आपका गेल हो गया, गैस अथॉरिटी, NTPC, ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट की PSUs होते हैं। तो जो भी इनका प्रॉफिट होता है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के ही पास जाता है। इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है। सो ओन बाय द गवर्नमेंट, ओन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कंस्टिट्यूट द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इनकम को कंस्टिट्यूट करती है। एंड हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू रन रेवेन्यू। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यहाँ से रेवेन्यू को अर्न करें। नेक्स्ट वन इज दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट। So receipt of the interest by the government on loan given by it to the state government, union territory is an important source of the non-tax revenue। देखिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट स्टेट्स को या जो भी यूनियन टेरिटरी है उनको लोन देती है, ठीक है। लोन तो देती है, आपको पता ही है, क्योंकि उन स्टेट्स को फंड की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो करते हैं। तो अब वो बोरो करेंगे तो इन रिटर्न उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोन को देना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, वन ऑफ द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इन द नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया, उस पर जो भी इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी दे रही है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट है फॉर फीचर ऑफ द बॉन्ड्स। फॉर फीचर आई थिंक सो यू नो वेरी वेल, क्योंकि आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ रहे होगे। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, कि जो शेयर्स क्या हो जाते हैं, वो सीज हो जाते हैं। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट की ये सिक्योरिटी है बॉन्ड, वो भी क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। जब सीज हो जाती है तो जो भी सारा फंड है, मनी है, वो किसके पास आ जाता है, गवर्नमेंट के पास आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर दी पेनाल्टीज़, ये पेनाल्टीज़ होती है इम्पोज बाय द कोर्ट, कोर्ट इन्हें इम्पोज करता है फॉर द नॉन फुलफिलमेंट। जो भी सारे लॉज बनाए गए हैं, जब भी पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं किया गया, उस केस में क्या है, जो भी पेनाल्टीज़ देना है विथ ऑर्डर और द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट। कि जो भी कंडीशन और एग्रीमेंट बने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, उनको फुलफिल ना करने पे वो जो बॉन्ड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, फॉरफीट कर दिया जाता है, सीज़ कर दिया जाता है। तो सारे इनकम किसके पास चले आते हैं, कोर्ट इनको सीज़ कर देता है, तो सारे किसके पास आ जाते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू के गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। सो दिस इज योर नॉन टैक्स रेवेन्यू और द रिसिप्ट। नेक्स्ट है द टॉपिक इज दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के डिफरेंस क्या हैं। तो सबसे पहला है कि टैक्स रेवेन्यू, जिसमें क्या आता है, सारे ऑल सोर्सेज ऑफ द इनकम है, कहाँ से, जो भी जितने काइंड ऑफ टैक्सेस हैं वहाँ से मिलता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है बट इट इज़
बियॉन्ड दी टैक्स रेवेन्यू, जो भी टैक्स रेवेन्यू के बियॉन्ड बात करते हैं, जो भी सोर्स है इनकम का, जिसमें ये सारे हम लोग ने देखा, ये क्या आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फिर कह रहा है नेचर कैसा है, नेचर ऑफ पेमेंट का। सो टैक्स रेवेन्यू क्या है, इट इज़ अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है, ये कंपल्सरी पेमेंट है विच इज़ इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इम्पोज करती है एंड every individual is liable to pay that money। and non tax revenue क्या है, it is a not a compulsory payment, ये compulsory payment नहीं होता है। फिर कह रहा है एग्जाम्पल्स, तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर कह रहा है बेनिफिट क्या मिलेगा, इन रिटर्न हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, नो डायरेक्ट बेनिफिट इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ टैक्स पेड, कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे, तो इन रिटर्न ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुरंत हमें बेनिफिट मिल जाता है। बट इन द केस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू हमें क्या है, इट इज़ पेड इन ड्यू ऑफ बेनिफिट और द सर्विसेज रिसीव। ये हम लोग को कब मिलता है, जब हम लोग कोई भी बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई बेनिफिट ले लिया या हम लोग को सर्विसेज मिली, जैसे सर्टिफिकेट्स लिया हम लोग, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये तो सर्विसेज हमें मिल रही है, इन रिटर्न हम क्या करते हैं, जो भी हमें सर्विसेज मिली उसके लिए हम लोग क्या है, सेटिस्फाइड हैं, पेड हुआ है, इसलिए हमें क्या है, यहाँ पे जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलता है, तुरंत मिल जाता है। बट अगर हम लोग टैक्स रेवेन्यू में बात करते हैं, तो जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जितना दे रहे हैं उतना हमें सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल योर रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या क्या पढ़ा, बजट कंपोनेंट्स ऑफ द बजट में देखा, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं इनकम के, वो सारे बजट रिसिप्ट में आते हैं। देन बजट रिसिप्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट हु डजंट कॉज एनी चेंज इन द असेट एंड लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है, जिसमें आपका क्या आ गया, जैसे कि टैक्स आ गया एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो सारे सोर्स होते हैं इनकम के जहाँ पे विच इज़ कंपल्सरी टू मेक द पेमेंट, जिसका हमें पेमेंट करना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, इनकम बियॉन्ड दी ऑल दी सोर्सेज ऑफ दी टैक्सेस। सो दीज ऑल आर दी सम नॉन टैक्स रिसिप्ट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बजट रिसिप्ट में, रेवेन्यू रिसिप्ट तो पढ़ लिया, नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसिप्ट। सो पुट डाउन दी हेडिंग दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट वो सारे रिसिप्ट होते हैं जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। उसमें हम लोग ने पढ़ा था जो असेट एंड लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये सारे वो जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस जो गवर्नमेंट का है उसको वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या करता है, इट क्रिएट्स द करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। देखिए बोरोइंग में क्या है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक इनकम हो रही है। मैं अगर बोरो कर रही हूँ किसी से, ठीक है, तो मुझे 10,000 रुपीज़ मैंने लिया, तो ये मेरे लिए इनकम हो गई, तो रिसिप्ट तो हो गया, बट इन रिटर्न मुझे पैसा वापस भी तो करना है। ऐसा तो नहीं कि वो पैसा मेरा है, मैं अपना आराम से रख ली हूँ, नहीं, वो पैसा मेरे को वापस करना है। तो सेम चीज़ हम लोग गवर्नमेंट के भी बात के साथ भी बात करते हैं, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट का है उसको वो अफेक्ट करता है। कैसे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने अगर बोरोइंग ली तो गवर्नमेंट लायबल है कि उस फंड को वो क्या करेगा, पे करेगा ही करेगा। फिर कह रहा है इट लीड्स टू द रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट का असेट है रिडक्शन भी करता है, रिडक्शन इन असेट। कैसे, बिकॉज ऑफ दी, इसका एक एग्जाम्पल हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट और द रिकवरी ऑफ द लोन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं, दे ऑल आर सोल्ड टू दी प्राइवेट सेक्टर, जो भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर देते हैं, तो अब ऐसे जो भी फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना था, वापस फंड को वापस करना था। उस केस में मेरे पास अपना तो कोई फंड नहीं था, मेरे पास कोई असेट था, मैंने क्या कर दिया, उसको सोल्ड कर दिया। तो सोचिए मेरे असेट को अफेक्ट किया कि नहीं किया, मेरी एक
लैंड अगर मैंने लैंड के फॉर्म में दिया, लैंड को सोल्ड करके उनको फंड दे रही हूँ, तो मेरे असेट को अफेक्ट किया ही ना किया। रिकवरी ऑफ लोन, लोन को रिकवर करना, मैंने लोन लिया था, अब मैं उसको रिकवर नहीं कर पा रही, उस केस में मैंने मेरे पास जो भी असेट था उसको मैंने सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू तो मिल रहा है, अर्न तो हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है कि असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस जो भी गवर्नमेंट की है वो उसको अफेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग ने बोरोइंग्स देख लिया, एक देख लेते हैं, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हो गया आपका रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। सो दस इट कंसिस्ट ऑफ द बोरोइंग्स फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड द अब्रॉड। अब जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, बोरोइंग्स कर रही है, ठीक है, बोरोइंग्स तो करती है, तो वो विद इन दी कंट्री भी करती है, मतलब अपनी कंट्री के अंदर भी करती है और आउटसाइड दी कंट्री। सो अदर रिसिप्ट जैसे हो गया प्रोसीड फ्रॉम दी डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं वो उनको प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर देना। ठीक है, फिर है रिकवरी ऑफ लोन, लोन का रिकवर कैसे करना, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द अदर डेटर्स के थ्रू। तो ये सारे क्या हो गए आपके कैपिटल रिसिप्ट हो गया, दैट इज बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड द रिकवरी ऑफ द लोन। जैसे हम लोग ने बजट रिसिप्ट में क्या क्या देखा था कि रेवेन्यू गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है, टैक्स रेवेन्यू और दी नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। ठीक है, बट वो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस जो भी गवर्नमेंट का उसको अफेक्ट नहीं करती है। बट इन द केस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ये असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट के अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बोरोइंग प्ले कर रहे हैं तो हम लोग लायबल हैं कि हमें वो पे करना ही करना है। हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग ने लोन लिया है तो हमें पे करना है, तो मे बी इन दैट सिचुएशन वी डोंट हैव सच अमाउंट ऑफ दी लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी, हमारे पास उस केस में मनी ना हो, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी असेट्स हैं, वेल्थ हैं, उन्हें हमें सोल्ड आउट करके वो पे करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और लोन की रिकवरी भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। Classification of capital receipts। तो इसमें सबसे पहला आपका हो गया दैट इज बोरोइंग्स एंड द अदर लायबिलिटी। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, एंड द लास्ट वन इज दैट इज अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को याद करिए, उसमें क्लासिफिकेशन हम लोग ने दो में किया था, टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो डोंट एवर मेस्ड विथ बोथ ऑफ देम, इन दोनों में मेस्ड मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें क्या है, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, बट वो क्या है, असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। बट कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ये असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को गवर्नमेंट को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या है, बोरोइंग्स एंड दी अदर लायबिलिटी, रिकवरी ऑफ द लोन, अदर रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर क्लासीफाई होता है। सबसे पहला आपका बोरोइंग्स एंड दी अदर लायबिलिटी, कि बोरोइंग और अदर लायबिलिटी क्या है।
सो कह रहा है कि बोरोइंग क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, तो गवर्नमेंट क्या है, वो लायबल है, दैट दे हैव टू पे। गवर्नमेंट को इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली बोरोइंग आर ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिट बोलते हैं। एंड इट इज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। ये वैसा डेट होता है जो कैपिटल रिसिट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कैपिटल रिसिट को क्रिएट कर रहा है। सो द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, तो जो भी गवर्नमेंट है वो कहाँ से बोरो करती है फंड को, जनरल पब्लिक से करेगी। जैसे हम लोग जनरल पब्लिक कैसे हम लोग करते हैं, बाई इशूइंग दी सर्टेन सिक्योरिटीज के थ्रू। और गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या क्या हो गया, जनरल पब्लिक हो गया, नेक्स्ट गवर्नमेंट के पास हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI। थर्ड हो गया कि जो भी एक्सटर्नल वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग ROW बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें गवर्नमेंट के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सारे के थ्रू भी गवर्नमेंट क्या करती है, फंड को बोरो करती है। सो बोरोइंग एंड दी अदर लायबिलिटीज में ये सारे आ जाते हैं। बोरोइंग्स मतलब कि गवर्नमेंट को क्या है कि फंड को बोरो करती है, किस किस फॉर्म में या किससे कर सकती है, वो जनरल पब्लिक से करेगी, सिक्योरिटीज जो भी जनरल सिक्योरिटीज हैं उनको इशू करके, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो कहती है ना, जैसे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो कहती है और करेंसी को इशू करो, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर दी बोरोइंग्स एंड दी अदर लायबिलिटी।